Hello students, today I'll explain the exercises of chapter number 5 verbs infinitives. Students, इस चैप्टर में आज हम एक्सरसाइजेज डिस्कस करेंगे और आप लोग बहुत अच्छे से समझिएगा कि उसका सेंस क्या है और कैसे एक्सरसाइज को आप चेंज करेंगे, कैसे इन्फिनेटिव चेंज करेंगे, कैसे इन्फिनेटिव का यूज़ करके आप दो सेंटेंसेस को ऐड करेंगे और ट्रांसिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इन ट्रांसिटिव वर्ब्स को कैसे आप पहचानेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए सबसे जो नेसेसरी थिंग है वो ये है कि आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा ताकि आप उस चीज़ को पेपर में अच्छे से कर सकें। यदि आपने वीडियो अच्छे से नहीं देखा तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल अच्छे से वीडियो देखिए और क्वेश्चन कंप्लीट करिए, करेक्ट आंसर राइट करिए। सो स्टूडेंट्स, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और इसको कैसे आप करेंगे। क्वेश्चन क्या गिवन है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट वेदर द वर्ब्स आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव आफ्टर यू अंडरलाइन द वर्ब्स। मीन्स इस एक्सरसाइज में आपको ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब रिकॉग्नाइज करना है और उसके बाद आपको जो वर्ब गिवन है उसे अंडरलाइन भी करना है। अब देखिए, आपके क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन राइट होके आएगा। यदि आप इस क्वेश्चन का सेंस नहीं समझ पाएंगे तो आपको यही नहीं कंफर्म होगा कि हमें करना क्या है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ क्वेश्चन। ओके, सो नाउ लिसन क्वेश्चन नंबर 1, आई बारोड द बुक फ्रॉम टीना। तो यहाँ पे कह रहा था कि क्या है, ट्रांजिटिव है या इनट्रांजिटिव है। तो इन दिस सेंटेंस वर्ब इज बारोड एंड बारोड इज ट्रांजिटिव वर्ब, सो यू विल राइट ट्रांजिटिव वर्ब इन दिस वे, transitive verb, and borrowed is transitive verb. Okay, next question, she solved the puzzle that was tricky. So in this sentence solve is verb and it is transitive verb. Next is she was sketching a portrait. So in this sentence sketching is transitive verb, so you will write T for transitive. You can write whole word also transitive verb, or we can write T. Next question, we were in the hostel together. So in this sentence verb is verb and it is intransitive verb. Next question, they are organizing an excursion trip. So in this sentence organizing is verb and it is transitive verb. Next question, the worm bit the leaf on the tree. So in this sentence bit is verb and it is transitive verb. Okay, next is Jerry ate the cheese slices. So in this sentence ate is verb and it is transitive verb. Next question, Robinson Crusoe rowed the boat. So in this sentence rowed is verb and it is transitive verb. Next, he discovered the abandoned ship later. So discovered is verb and it is transitive verb. Next, he locked the cupboard. So locked is verb and it is transitive verb. In this way you can complete your first exercise. Now listen question number 2. Listen very carefully the sense of this question. Pick out the objects. What will you pick out? You will pick out objects from the following sentences. After you identify the transitive and intransitive verbs, some sentences have two objects. State whether the objects are direct or indirect. Means you will have to find out objects and you will have to tell that this is direct object or indirect object. The first one has been done for you. Now listen question number 1. He returned the book to her. So you know the non-living things is non-living thing refer to direct object and living thing refer to indirect object. So in this sentence return is verb, direct object is the book and indirect object is her. ओके, यदि नॉन लिविंग थिंग्स गिवन है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिफर करती हैं और जो ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे नाउन जो लिविंग होते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, द टीचर डिलीवर्ड लेक्चर टू द स्टूडेंट। तो इन दिस सेंटेंस वर्ब इज डिलीवर
direct object is a lecture, and indirect object the students. Okay, next is the sun shone brightly. So in this sentence verb is shown, but there is not given object, it is complement, so you will leave it. ठीक है. Question number 4, I will give the golf set to Tina. So in this sentence give is verb, direct object is the golf, and indirect object is Tina. So you can fill in this way this exercise also. Question number next, Elton John dedicated a song to Lady Diana. So in this sentence verb is dedicated and a song is direct object, indirect object is Lady Diana. So students, in this way you can complete this exercise. Okay, let us discuss next exercise. Now look question number 6, I saw the girl. So in this sentence verb is saw, there is not given any direct object, and girl is indirect object. Okay, next question, the magician threw the hat at the audience. The verb is threw, direct object is the hat, okay, and indirect object is the audience, so you can write the audience. Next question, the frog jumped on the prey instantly. In this sentence verb is jumped, there is not given any direct object, indirect object is prey, शिकार पर कूदा. तो शिकार क्या होगा, कोई लिविंग होगा, है ना, तो ये क्या किस में आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइज. लेट अस डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज. मींस नेक्स्ट एक्सरसाइज इज गिवन हियर लिंकिंग वर्ब्स. तो इसमें डी ऑप्शन में जो एक्सरसाइज गिवन है, अंडरलाइन द लिंकिंग वर्ब्स हेयर. तो इन दिस सेंटेंस द स्काई अपीयर्ड क्लाउडी. तो अपीयर इज लिंकिंग वर्ब. Plants grow well in bright sunshine. So in this sentence grow is linking verb. Next question, muffins taste delicious. In this sentence taste is linking verb. His words sounded incoherent. So in this sentence sounded is linking verb. Pumpkin plants grow fast. So grow is linking verb. Students, you can see here verbs such as forms of be, look, appear, grow, seem, sound, taste and so on are used as a linking verb. Form of be means is, am, are, was, were, been. These are called form of be. So in this way you can underline the linking verbs. Okay, so let us discuss next exercise. Now look exercise number E. Read the following sentences and underline the infinitive. So students, you know formation of infinitive. If there will be given first form of the verb before first form of the verb, when you use of to, it is called infinitive. So in first sentence you can see I was asked to sing. To sing is infinitive. Question number 2, they love to play. To play is infinitive. So you will underline to play. Next question, I am helping my mother to clean. To clean is infinitive. Next, she used to study. To study is infinitive. Next, I did not want the abandoned puppy to starve. To starve is infinitive. Next question, he was told to report on duty on Monday. So in this sentence to report is infinitive. So in this way you can complete this exercise. So let us discuss the exercise number F. Now look exercise number F, what is given here. Fill in the blanks with appropriate infinitive forms. Use the words given in the box. तो स्टूडेंट, जो सबसे कंपलसरी एंड नेसेसरी थिंग ये है कि आप क्वेश्चन का सेंस जरूर समझिए, और जो मैं बोल रहा हूँ आप उसका सेंस भी समझते रहिए, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर में प्रॉब्लम ना हो सके. ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया है अकबर वाज वेरी स्मॉल व्हेन ही बिगन. तो आपको करना क्या है इसमें कि जो वर्ब्स गिवन हैं इन्हीं को इन्फिनेटिव फॉर्म में यूज़ करना है. तो इन्फिनेटिव फॉर्म्स अभी मैंने बताया आपको कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो अब देखिए, जब आप सेंस समझ जाएंगे क्वेश्चन का तो आप करेक्ट वर्ब भी चूज कर लेंगे. सेंटेंस गिवन है अकबर वाज वेरी स्मॉल. अकबर बहुत छोटा था. व्हेन ही बिगन, जब उसने प्रारंभ किया. क्या? द किंगडम. किंगडम पर क्या करना? लिसन, बाय, रूल, इंटरटेन. तो रूल शासन करना, तो आप लिखेंगे टू रूल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैजिशियन ट्राइड. जो जादूगर है उसने कोशिश किया क्या करने को? द ऑडियंस. ऑडियंस को क्या करेगा? वो लिसन करेगा, बाई करेगा, इंटरटेन करेगा. तो यू विल राइट टू इंटरटेन. नाउ क्लियर?
to entertain. नेक्स्ट, फादर प्रॉमिस्ड, फादर ने प्रॉमिस किया अ न्यू कंप्यूटर ऑन माई बर्थडे. तो क्या करेंगे, वो बाई करेंगे ना. तो फादर प्रॉमिस्ड टू बाय, पापा ने एक नया कंप्यूटर खरीदने का प्रॉमिस किया मेरे बर्थडे पे. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर रिफ्यूज टू लिसन एनी ऑफ द एक्सक्यूज ही मेड. कोई भी एक्सक्यूज सुनने से टीचर ने क्या कर दिया, मना कर दिया टू listen. So in this way you can complete this exercise. So let us discuss next question, next exercise number G. Listen very carefully, this is very important question also. Rewrite these sentences using the verbs given in bracket. जो students केवल राइट कर लेंगे किसी की कॉपी से, बुक से, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा बच्चे. इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपको बिल्कुल कंफर्म हो पाएगा. अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. मदर इज़ वरीड अबाउट रीनाज हेल्थ. किसका यूज़ करना है, सीम का यूज़ करना है बेटा. रीराइट द सेंटेंसेज यूजिंग द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट. जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए हैं उन्हीं का यूज़ करके आपको इन सेंटेंसेस को अगेन राइट करना है. तो मदर इज़ वरीड अबाउट रीनाज हेल्थ. तो मदर सीम्स, अब देखो सीम गिवन है यहाँ पर, सब्जेक्ट के बाद जहाँ वर्ब है वहाँ पर हम सीम वर्ड यूज़ कर लेंगे. मदर सीम्स. अब यहाँ पे क्या करना है, हमें इन्फिनिटिव बनाना है. तो एक नया वर्ड ले लेंगे बी. टू बी वरीड अबाउट रीनाज हेल्थ मीन्स मदर seems to be worried about Rina's health. सेंस भी वही है, इन्फिनिटिव फॉर्म भी हो गया. तो यू कैन राइट इन दिस वे, मदर seems to be worried about Rina's health. Okay, so now look next question. रोहन इज अ गुड फुटबॉलर क्लेम. अब यहाँ पर किसका यूज करना है, क्लेम का यूज करना है. तो रोहन क्लेम्स टू बी अ गुड फुटबॉलर. रोहन क्लेम्स टू बी अ गुड फुटबॉलर. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विनीता हैज लॉस्ट हर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. तो विनीता सीम्स, किसका यूज करना है यहाँ पर, सीम का यूज करना है. तो विनीता सिंगुलर है तो सीम्स हो जाएगा. विनीता सीम्स टू लॉस, यहाँ लॉस था, इन्फिनिटिव बना देंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी. विनीता सीम्स टू लॉस हर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ एन अपॉइंटमेंट विद द डॉक्टर. तो क्लेम, क्लेम का यूज़ करके सेंटेंस को आपको बनाना है. तो क्या हो जाएगा, ही क्लेम्स टू हैव. अब देखिए यहाँ पे हैज़ गिवन था, बट ही के साथ क्या करेंगे हम, जब इन्फिनिटिव फॉर्म बनाएंगे तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा. तो हैज़ की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, हैव होती है. तो क्या राइट करेंगे, ही claims to have an appointment with the doctor. So in this way you can complete this exercise. Okay students, now listen next question, question number H. What is the question number H? Fill in the blanks with infinitives. ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन का सेंस बेटा. Fill in the blanks with infinitives and other words. Complete the sentences without altering the meaning. बिना altering meaning को बिना alter किए हुए, बिना बदले हुए कंप्लीट करना है सेंटेंस को. ओके. और किसका यूज करना है आपको, इन्फिनिटिव का यूज करना है. तो सेंटेंस दिया है, मदर सेड आई शुड नॉट बी केयरलेस. मम्मी ने कहा कि मुझे केयरलेस नहीं होना चाहिए. तो मदर एडवाइज्ड, मम्मी ने क्या किया, सलाह दिया मी मुझको, आई किस में बदल गया, मी में, नॉट टू बी केयरलेस, कि हम केयरलेस ना हो. अब देखिए यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव बना दिया. सेंटेंस नेगेटिव सेंस में था, आई शुड नॉट बी था, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट लगा दिया. तो क्या हो जाएगा, नॉट टू बी केयरलेस. तो इन दिस वे यू कैन change the sentence into infinitive form, but sense should not be changed. Okay students, now look next question is, I think you should consult a dentist. तो I want you to consult a dentist. मैं चाहता हूँ तुमसे कि तुम क्या करो, एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करो. कंसल्ट वर्ब है, उसी के पहले टू का यूज करके इन्फिनिटिव फॉर्म बना दिया और आ डेंटिस्ट हो गया बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कोच सेड दैट द टीम कुड प्रैक्टिस टिल लेट. तो कोच ने कहा कि टीम क्या कर सकती है, काफ़ी देर तक प्रैक्टिस कर सकती है. तो द कोच अलाउड द टीम, कोच ने क्या कर दिया, टीम को अलाउड कर दिया टू प्रैक्टिस टिल लेट, देर तक प्रैक्टिस करने की. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, फादर सेड दैट आई कुड यूज हिज मोबाइल. तो फादर अलाउड मी, फादर अलाउड मी, पापा ने मुझे अलाउ कर दिया टू यूज हिज मोबाइल, की उनका फ़ोन वो क्या कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस एक्सरसाइजेज. सो लिसन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आई नंबर,
What is the question number I? Listen very carefully the sense of these sentences. Now read the following sentences and fill in the blanks with infinitives, forms of verbs. You can use to wherever necessary, means forms of verb are given in within bracket. You will choose those forms and you will use infinitive form or bare infinitive. In this way you can complete this exercise. Listen question number 1. You should ask for permission before you leave. So you will write only ask. Next is my classmate refused accept my. So to accept my, what will you write? To accept my gift. Next is they seem know the singer well. So they seem to know. They seem to know the singer well. Next question. The doctor agreed treat the patient at once. So the doctor agreed to treat the patient at once. Next question. Can I use your laptop? So can I use your laptop? Okay. Next question. Where will your friends have lunch? Like to have lunch. In this way you can complete this exercise also. So now look, next exercise number J. J is, listen very carefully this exercise also. Now listen this question. Fill in the blanks with infinitives. Use the verbs given in brackets. Means verbs are given in brackets. You will choose those verbs and you will write in infinitive forms. First question. She needs for fuel, or she may be stranded in her car midway. So she needs to stop. She needs to stop. Okay, for fuel, or she may be stranded in her car midway. Next question. The train was about to leave. Next question. They dare not challenge. You will not use of challenge again to challenge, because dare word is given here. So after dare we should not use of infinitive form, but we should use of bare infinitive, not challenge. Okay. Next question. Samriddhi wanted to buy. Samriddhi wanted to buy shoes from the mall. Next question. He need not blame others for his own mistake. Next question. She told her parents that she wanted to learn. Next is, she requested the chairman to grant her week's leave. Next question. Malini was supposed to write a letter to her grandmother. Okay students, so in this way you will complete this exercise also. Now look, next exercise number next, K. After J, exercise is given here, K. So fill in the blanks with two infinitives or with bare infinitives. Means by using infinitive, to infinitive or bare infinitive, you will fill this exercise. He saw a lady to enter the conference room. Next, she would rather give up the assignment than continue further. You will not use up to continue, you will bare infinitive, because then after then we should use a bare infinitive, continue. Okay. Next question. Rita tried the room without being caught. So Rita tried to enter the room. Okay. Next question. The teacher made her practice, not to practice. You will write only practice.
ठीक है। तो द टीचर मेड हर प्रैक्टिस द सॉन्ग फॉर लॉन्ग आवर्स। तो स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस exercise by using to infinitive and by using bare infinitive. You can combine this exercise. So let us discuss next exercise. Okay students, now look exercise number L. ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीराइट दीज सेंटेंसेज यूजिंग द टू एंड टू पैटर्न। मीन्स TOO क्या है, एडवर्ब है, और ये टू क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस फॉर्मेट को यूज करके आपको सेंटेंस को कंबाइन करना है। पहला सेंटेंस देखिए क्या दिया हुआ है, द गर्ल इज सो एक्साइटेड दैट शी कैन नॉट स्टॉप जंपिंग एंड शाउटिंग। तो यहाँ पे जो पहला सो दिया हुआ है, आप जब सो दिया हो तो उसको बदल दीजिएगा TOO में। आप ध्यान से समझिएगा, सो किस में बदल जाएगा, टू में, फिर जो वर्ब गिवन है वो लिखोगे, फिर जो दूसरा पोर्शन है दैट शी कैन नॉट आ जाए, दैट ही कैन नॉट आ जाए, दैट दे कैन नॉट आ जाए, दैट इट कैन नॉट आ जाए। तो यदि यहाँ इज दिया होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू स्टॉप हो जाएगा। ये बात आप समझिएगा इसको। यदि यहाँ इज होगा तो यहाँ कैन नॉट होगा, यदि यहाँ वाज होगा तो यहाँ कुड नॉट होगा। तो यहाँ इज था, यहाँ क्या है, कैन नॉट है। तो ये पूरा पोर्शन दैट शी कैन नॉट किस में बदल जाएगा, टू में, TOO में। और फिर वर्ब आप लगा दीजिए, टू स्टॉप जंपिंग एंड शाउटिंग। फिर पूरा सेंटेंस आगे का आप नोट कर दीजिए। आप एक बार फिर से सेंटेंस को, अगला सेंटेंस देखिए, वहाँ कोशिश करिए समझने की। सेंटेंस है द ड्रेस वॉज सो एक्सपेंसिव। अब देखिए यहाँ पे वाज आ गया है, तो इधर कुड नॉट आ गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो द ड्रेस वॉज टू एक्सपेंसिव टू बी। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आई है सेंटेंस में कि यहाँ सब्जेक्ट ड्रेस है और यहाँ सब्जेक्ट शी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नया इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। तो द ड्रेस वॉज टू एक्सपेंसिव टू बी बॉट बाई हर, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को हम राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई अंकल वॉज सो सिक दैट ही डिड नॉट अटेंड द पार्टी। जहाँ कैन नॉट आता था वहाँ डिड नॉट का भी यूज़ किया जा सकता है। तो माई अंकल वॉज, सो किस में बदल गया, TOO में, सिक दैट ही डिड नॉट को किस में बदल दिया, टू में, टू अटेंड द पार्टी। Okay, last question of this exercise is the boy was so scared that he could not speak clearly. So the boy was, so किसमें बदल गया, टू में, the boy was too scared। अब ये जो पोर्शन है that he could not आ जाए, that she could not आ जाए, that she can not आ जाए, that they can not आ जाए, इनको सबको किसमें बदल दिया था, टू में। आगे जो पोर्शन है पूरा राइट कर देंगे, टू स्पीक क्लियरली। तो इन दिस वे यू विल कंबाइन दिस सेंटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आप बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, अदरवाइज आप इसको कर नहीं पाएंगे बेटा। उसी से रिलेटेड एक अगली एक्सरसाइज फिर दी हुई है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। आप फिर से देखिए एक्सरसाइज को। क्वेश्चन गिवन है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद इन्फिनिटिव्स। जो दो सेंटेंस दिए हुए हैं इनको आप इन्फिनिटिव का यूज़ करके कंबाइन करिए। तो वही रूल आप फॉलो करिए, ही फाउंड हिज वॉलेट, ही वॉज टू हैप्पी। तो इसको पलट लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। अब इसको हम चेंज क्यों कर रहे हैं ये भी आपको अभी मैं बता दूंगा। ही वॉज टू हैप्पी टू फाइंड। अब देखिए यहाँ वर्ब दिया हुआ है ना, फाउंड, इसी के पहले टू लगा लो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दो, टू फाइंड हिज वॉलेट, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहिणी प्रेजेंटेड अ रिंग टू हर मदर, शी वॉज टू हैप्पी। वो बहुत खुश थी, तो रोहिणी वॉज टू हैप्पी, ठीक है। रोहिणी वॉज टू हैप्पी टू प्रेजेंट अ रिंग टू हर मदर। इसको हमने चेंज कर लिया, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस पहले राइट कर लिया, जहाँ शी था वो रोहिणी हो गया, क्योंकि रोहिणी के लिए ही तो शी आया है। तो यहाँ क्या राइट करेंगे, रोहिणी वॉज टू हैप्पी, और वर्ब क्या है, प्रेजेंटेड था, तो इसी के पहले TOO लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर दिया, टू प्रेजेंट अ रिंग टू हर मदर। इन दिस वे यू कैन राइट योर होल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन डिड नॉट पैक हिज बैग, ही वॉज टू टायर्ड। तो रॉबिन वॉज टू टायर्ड, कौन टायर्ड था, रॉबिन ही तो टायर्ड था, उसी के लिए तो ही आया है, तो यहाँ पे आप रॉबिन लिख लो। रॉबिन वॉज टू टायर्ड टू पैक हिज बैग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज वेरी पेशेंट, ही डिड नॉट कंप्लेन। तो ही वॉज टू पेशेंट टू कंप्लेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दे लॉस्ट द मैच, दे वर अपसेट। तो दे वर अपसेट टू लॉस द मैच, मीन्स मैच खो करके वो लोग क्या थे, अपसेट थे। तो इन दिस वे यू कैन कंबाइन दिस एक्सरसाइज आल्सो। सो स्टूडेंट्स, नाउ लुक नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर N।
तो नाउ लुक फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, रीराइट द सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द वर्ब्स। ध्यान से समझिएगा इसको। रीराइट द सेंटेंसेस बाय रिप्लेसिंग द वर्ब्स इन बोल्ड। जो बोल्ड में लिखे हुए हैं इनको आपको रिप्लेस करके वर्ब राइट करना है। बोल्ड विथ इन्फिनिटिव्स, मेक अदर चेंजेस एज रिक्वायर्ड। और भी जो चेंजेस हैं उसे भी करिए। सेंटेंस है माई अंकल प्रॉमिस दैट ही वुड ब्रिंग अ न्यू बैग फॉर मी। तो माई अंकल प्रॉमिस टू ब्रिंग, यहाँ पर क्या है, जो दैट ही वुड है इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, माई अंकल प्रॉमिस टू ब्रिंग अ न्यू बैग फॉर मी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई नेबर वॉज द मोस्ट रिलायबल पर्सन हु ऑफर्ड हेल्प। तो माई नेबर वॉज द मोस्ट रिलायबल पर्सन टू हेल्प, यहाँ से इसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और टू हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी वर शॉक्ड व्हेन वी हर्ड द न्यूज़। तो वी वर शॉक्ड टू हियर द न्यूज़, यहाँ हियर वर्ब है, इसी को इन्फिनेटिव में चेंज करके राइट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु रिपोर्टेड द मैटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिपोर्ट द मैटर। Okay students, so let us discuss last exercise of this chapter and listen very carefully this video and you will write all answers also. So let us discuss next and last exercise of this chapter. Complete these sentences by inserting infinitives from the box and rewrite them. यहाँ से आपको चूज करके इन्फिनेटिव फॉर्म में राइट करना है और दोबारा सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस दिया है, रीता हैज गॉन लॉन टेनिस इन द क्लब। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, रीता हैज गॉन लॉन, लॉन हैज गॉन लॉन, लॉन को गई है किस लिए, टू प्ले, टू प्ले टेनिस, टू प्ले टेनिस इन द क्लब। तो रीता हैज़ गॉन लॉन, यल है ये, टू प्ले टेनिस इन द क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई ब्रदर वॉन्टेड फॉर अ स्विम एंड एंजॉय हिज संडे। तो माई ब्रदर wanted to go, कहाँ पे, for a swim and enjoy his Sunday. In this way you can write your answer. Next question, she wanted me her find the lost book. So she wanted me to help her. She wanted me to help her find the lost book. Find the lost book. Next question, he was hungry and decided for some food at the restaurant. So he was hungry and decided to order for some food at the restaurant. So students, this chapter has been completed. You will watch the video very carefully and you will note down all examples, all answers on your book. Okay, thank you so much for watching this video. और अभी तक यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू सो मच।